We are MSc in Statistics. MSc स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है यार? क्या तुम डेटा फीडिंग का काम करती हो? क्या तुम घर घर में जाके सर्वे लेते हो? क्या तुम मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हो? जानना है क्या है? So let's start. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या एंड दिस इज सपना। आप देख रहे हैं स्माइलिंग फीवर चैनल का स्पेशल सेगमेंट इंडिट्यूली स्टैट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ऑल अबाउट स्टैट्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड ऑल्सो इन डेप्थ में जाके हम आपको हमारा एक्सपीरियंस बताने वाले हैं रिगार्डिंग BSc इन स्टैटिस्टिक्स। So in this video, we are gonna see real life application and uses of statistics. Second, all about statistics, machine learning, data science and softwares that are involved in it. Third, actuarial science and its understanding. Fourth, what to exactly expect from BSc Stats and why you should go for it. Also, the difference between BSc Mathematics and BSc Statistics, we will tell you. And lastly, a bonus tip for you, that is after BSc Statistics. So should you go for jobs after BSc Statistics or you should try Masters? So that's a bonus tip for you. So stay tuned till the end of the video to know this. So let's get started. So let's start with the first part, real life application and uses of statistics. I'm sure आपको जानना होगा कि हम statistics कर तो लेंगे, but उसके आगे क्या? So Netflix तो आप करते ही होंगे, चिल एंड Netflix एंड Amazon Prime. क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जो recommendations आते हैं वो कहाँ से आते हैं? क्यों मुझे जो recommendations आते हैं they are different और आपको जो recommendations आते हैं different? Why are they dependent on my choice of what I see and the others are dependent on what choice you see? ये recommendations कौन देता है? Statisticians देते हैं ये recommendation. So at the back end एक model build किया जाता है which understands what type of a customer, what type of a person, movie liker are you, and accordingly आपको वैसे recommendation दिए जाते हैं. So that's one of the application of statistics. अब loans तो हमने commonly सुना रहेगा, चाहे वो पर्सनल लोन हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन. अब जस्ट सोचिए कि आप जब एक लोन के लिए अप्लाई करते हो, ऐसे क्रोर्स ऑफ पीपल अप्लाई फॉर स्मॉल 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 लोन्स. तो क्या एक कोई पर्सन बैठा है जो हर लोन देखता है, अरे इसको लोन दूं, इसको ना दूं, और कैसे डिसाइड करता है वो इसको दूं, इसको ना दूं? सो एक्चुअली इसके पीछे ऑल्सो देयर इज अ पर्सन हु इज statistician. So statisticians come into picture here and they help to build a model. एक backend में एक model build करते हैं, logistic regression, based on which decide होता है एक person को loan देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. Different criteria जो कि study करके decide किए जाते हैं. Then is stock market. I know हम सब stock market ऊपर और नीचे जाने का बहुत हमने सुना रहता है. जो लोग stock market में deal करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज, वो कैसे डिसाइड करते हैं कौन से स्टॉक कब हाई जाएंगे और कब लो जाएंगे? इन दिस कम्स इनटू पिक्चर स्टैटिस्टिशियन, जो कि प्रिडिक्ट करते हैं पास्ट बिहेवियर ऑफ द स्टॉक को देख के कि वो जो स्टॉक है वो आगे जाके कैसे बिहेव करने वाला है, विल इट इंक्रीज और विल इट डिक्रीज. सो योर एंड देयर आर इमेंस एप्लीकेशंस. ये जस्ट मैंने फ्यू बताया है, just to name one more from the medical field जिनको मेडिकल में इंटरेस्ट है. So जब क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, कोई भी ड्रग मार्केट में लाना है या नहीं लाना है, इसके लिए अगेन कम्स इनटू पिक्चर statistician and they decide कि ये ड्रग लाना क्या रियली इम्पैक्टफुल है. सैंपल चूज करते समय दे आर द वन हु हेल्प्स. हम वी कांट जस्ट चूज इनको इनको उठा लो, इट हैज टू बी रैंडम. सो ये सारी चीजें is what a statistician does. उसका real life impact and application. I'm sure ये बहुत interesting लगा होगा आपको and आपको समझा होगा कि actual में a statistician has so much impact because of what he or she studies. So now interesting लगे application सीखना है. So let's understand the basic of statistics. When you learn statistics comes as data science, machine learning, big data and so many softwares, R, Python, ये वो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. So here comes the second topic of this video, all about data science, statistics, data analysis, machine learning and big data.
So data science is basically a term which is combination of statistics, data analysis and machine learning. So data science क्या करता है? कंपनी के पास डेटा रहता है, कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, उनके पास भर भर के डेटा होता है, एंड व्हाट दे वांट टू डू इज दे वांट टू ऑप्टिमाइज एंड एनालाइज दिस डेटा इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड टाइम. तो ये चीज कौन करता है? डेटा साइंस करता है एंड द स्टैटिस्टिशियंस. सो ये जो डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस होता है उसका बैकबोन होता है स्टैटिस्टिक्स. ऑल द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट डेटा कैन बी जनरेटेड यूजिंग स्टैटिस्टिक्स. कोई भी एक सिंपल एग्जांपल ले लो, लाइक एवरेज या फिर मीन. ये टर्म तो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी सुना होगा. सो व्हाट इज एन एवरेज? इट गिव्स द मोस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ द डेटा, जो हर बार डेटा में आ सकती है और ओवरऑल डेटा का एक सिंगल नंबर रिप्रेजेंटेशन करता है. दैट इज नथिंग बट द एवरेज. Next, this is the basic of data science and analysis, that you can analyze entire data using the help of small numbers, that is statistics and probability. So it is a backbone of data analysis. Next one is a data analysis. Data analysis is a part of data science which covers from आपने data क्यों collect किया, उसमें क्या होने वाला है, कैसे प्रोसेस होने वाला है आगे. तो starting from data collection analysis, importing, exporting, conclusion, reporting, everything. So that every step is covered under the data analysis. Next one is the machine learning part. So for that, I would like to introduce a new term, big data. What is big data? Let us take an example of bank. So at the same time, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो you are not the only person who are applying for the loan, right? वो टाइम पे लाखों लोग वो small लोन के लिए अप्लाई करते हैं. So big data has 3 V's. First one is the velocity. Next one is the volume. Next one is the variety. So in order to analyze this big data, आप ये चीज तो आप मैन्युअली नहीं कर सकते, राइट? एक एक डेटा लो, एक एक एंट्री लो और उसको चेक करो. नो. सो व्हाट वी डू इज वी टेल द मशीन टू अंडरस्टैंड दिस डेटा एंड लर्न फ्रॉम इट. हम लोग उसे बोल देते हैं कि भाई अगर ऐसे ऐसे कोई इंस्टेंसेस आ जाए तो उसको एक जगह पे क्लासीफाई करो. बंदा है जिसके पास रिकॉर्ड कुछ अच्छे नहीं है, वो शायद पैसे डुबा सकता है, तो उस इंसान को आप लोन दोगे क्या? नहीं. तो दिस थिंग वी टेल मशीन with the help of past data. So now अब हम जानते, जब हमने जान लिया है कि डेटा साइंस इतना अमेजिंग टर्म है, इतना यूजफुल है, लेट्स अंडरस्टैंड उसके रियल लाइफ इंपॉर्टेंस. तब आपको समझेगा कि ये कितना और इंटरेस्टिंग है. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम मार्केटिंग फील्ड. मार्केट बास्केट एनालिसिस ये एक बहुत ही अमेजिंग स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है. जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप बिग बाजार जाते हो या कोई भी शॉपिंग सेंटर जाते हो, मुझे बताइए ऐसे क्यों होता है कि जहां पर चीज रखा होता है उसके बाजू में बटर रखा होता है, जहां पे टी पाउडर रखा होता है उसके ही बाजू में यू हैव शुगर पाउडर. ऐसे क्यों होता है? बिकॉज दीज आर द सिमिलर प्रोडक्ट्स जो एज अ कंज्यूमर हम साथ में बाय करते हैं. टू अंडरस्टैंड कि ये इसके साथ बाय किया जाता है, थोड़े लॉजिकली है बट थोड़े इनसाइट्स हमें स्पेसिफिकली थ्रू स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलते हैं. So this is one of the key application. Then social media is very trending nowadays, isn't it? So मुझे बताइए, how do you understand जो tweets आते हैं कि they are good tweet or bad tweet, a positive review or a bad review? इसके लिए sentiment analysis किया जाता है, where each comment को study किया जाता है backend in the computer, where वर्ड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स, एंड एक स्कोर दिया जाता है कि व्हाट द जनरल यूजर्स फील रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. बिकॉज एट अ सिंगल टाइम हम thousands of कमेंट्स नहीं पढ़ सकते, बट इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंज्यूमर इज फीलिंग, व्हाट हिज सेंटिमेंट इज, उनको क्या लग रहा है, दिस इज अ वेरी अमेजिंग टेक्निक जो बहुत सारे ब्रांड्स यूज करते हैं. सो नाउ लेट्स गो फॉर सेल्स. अब जब एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि वो प्रोडक्ट 10 आइटम्स प्रोड्यूस करने चाहिए, यूनिट्स, या 1000 प्रोड्यूस करने चाहिए? व्हाट इज द ऑप्टिमम क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करना चाहिए? इसमें डिमांड फोरकास्टिंग एक बहुत ही की रोल प्ले करता है. दैट इज प्रीवियस कितना यूज हुआ है, प्रीवियस कितने सेल्स हुए हैं, उसके बेस्ड अभी कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, ऑल्सो कहाँ कहाँ होना चाहिए. एप्लीकेशंस है डेटा साइंस के एंड फील्ड्स है जिसमें आप काम कर सकते हो एंड कैन एक्चुअली हैव एन अमेजिंग इम्पैक्ट. सो अभी आपने एप्लीकेशंस तो देख लिए, बट एज मेंशन्ड बिफोर, बिग डेटा इज सो बिग दैट यू कैन नॉट हैंडल इट मैन्युअली. तो हम लोग कोई कैलसी लेके एक एक एंट्री हम लोग एनालिसिस नहीं करते बैठेंगे. सिंपलिसिटी ऑफ स्टैटिस्टिशियन, देयर आर एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल देयर. एंड आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट skill that any statistician should have is
they should have a command on at least one of this software. So basically this is a screenshot of one of the software, R Studio. So this is one of the software. वैसे ही R Studio जैसे ही Python, Advanced MS Excel, SQL, SPSS, SAS, ऐसे n number of software are available there. उसमें से for a BSc level you should be familiar with Excel. But most of the data कहाँ पे सेव होता है, जो फॉर्म हमारे पास आता है वो मोस्टली MS Excel फॉर्म में ही होता है. तो basic analysis of data can be done in MS Excel only. Like उसके summary निकालना, वो data का distribution देखना, कोई plotting, chart, pie chart. So what is this actuarial and what is the difference between actuarial science and BSc statistics? Let's understand that. Actuarial science जो होता है is a combination of statistics, is a combination of commerce के few subjects and papers, and also has an insurance background to it. So actuarial science is a combination of all these fields. अब इसमें actuarial के आपको कुछ papers देने होते हैं, and after you have cleared all the papers, then you become an actuary. So जब मैं first year में गई थी, I heard many people around me saying actuarial science is a very good career, this and that. So I didn't know at that time कि exactly ये क्या होता है. But I knew that statistics के some papers have direct useful in actuarial science. So I decided to go for actuarial science paper. So इसमें multiple papers होते हैं. There are about 12 to 14 papers जो आपको clear करना होता है. उसमें से 2 पेपर are specifically statistical subject जो आप 3 years of statistics में पढ़ते हो. So I went for those papers which I really enjoyed. But other papers are based on commerce background also. जैसे कि financial terms है, financial economics है. Economics is also a very important part here. So those papers are very important. So later on I realized that I am more inclined towards statistical and its application rather than. So मेरी एक friend है जो ये pursue कर रही है, and you have to clear papers, and once you clear paper you really get a good job. So what I would suggest you here is, अगर आप मेरे जैसे हो कि you are confused, you don't know if you want to go for actuarial science or not, start giving a paper, explore it, and automatically you will understand if you're liking it or not, and then you can decide कि आपको उसमें pursue करना है या you want to go for statistical and its application. Now let's start with the fourth part of the segment. What to expect from BSc Statistics and why you should choose BSc Statistics. Rather आपको क्यों जाना चाहिए BSc Statistics. Also एक बहुत ही common question जो हमें बहुत regularly पूछा जाता है, जो हमने भी पूछा था, is BSc Statistics and BSc Mathematics. इसका difference क्या है? Why मैंने कौन सा choose करना चाहिए? Which is good for me. So we will try to answer these questions for you. BSc Statistics is a branch of mathematics, but an application branch. मतलब mathematical concepts को, formulas को, equations को, we try to apply it using mathematical base in real world and solve the problem. तो BSc Statistics में mainly आप देखोगे theoretical concept सीखोगे आप behind the application. So बहुत amazing terms है जो आप apply करोगे to solve problems. But उसके behind का logic क्या है? All that you can expect from BSc Statistics, and you should definitely go for BSc Statistics if you're inclined towards numbers, mathematics and its application part. तो मैथ्स में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे, बड़े बड़े डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बट विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट, इफ यू आर अप्लाइंग ऑन रियल लाइफ डेटा, then it comes under this, all science comes under the statistics. So statistics is nothing but the science of data. So that is what the difference between mathematics and statistics. अगर आप theory या फिर research oriented है, जो आपको numbers में research करने के लिए interest है, then you can go BSc Mathematics. So now let's understand about BSc Statistics course. तो ये कोर्स आपको बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल मिलेगा अक्रॉस मुंबई एंड बियॉन्ड थाने. आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम सोमैया कॉलेज, आल्सो सपना डिड हर बैचलर्स फ्रॉम बिजुरुपारन कॉलेज, और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आर आल्सो अवेलेबल है. सो बीएससी स्टैटिस्टिक्स इज अ 3 इयर्स का कोर्स. फर्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने होते हैं, लाइक पीसीएम, पीएमएस, ईएमएस. सो लाइक पी फॉर स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, M stands for mathematics and S stands for statistics, or else EMS, that is economics, maths and statistics. First year में आपको ये 3 सब्जेक्ट होंगे. Next year you have to drop one of it. Also that subject combination differs from college to college. And in the last third year आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा स्पेशलाइजेशन के लिए. So if you choose let us say statistics for specialization, तो एक ही statistics सब्जेक्ट के आपको 6 पेपर होंगे. So now coming to the fifth, the bonus part. Should you go for jobs after BSc? Yeah, you should go for masters. Now this is a very frequent question. Most of the third year students, final year students ask this question. So now मेरा personal suggestion होगा that
if you have the choice right now, then go for masters for statistics, because आपका scope बढ़ जाता है, कि knowledge widen हो जाती है, and आपकी opportunities, especially job opportunities, increases to a very large extent. BSc में mainly theoretical concepts पे focus होता है, while in masters आपका application, the gap between real life and theoretical build होता है, softwares की knowledge बढ़ती है, and also masters makes you ready for the industrial world, how you can excel there. So I would definitely suggest that go for masters. Also, अब मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ. मेरा एक फ्रेंड था who was a senior to me, so he didn't go for masters, rather he chose to go for job opportunities after BSc in stats directly. So उसने जॉब के लिए ट्राई किया, then he shifted multiple jobs. Now जब मेरी उससे बात हुई तब he told me कि he has the knowledge, he has the skills, बिकॉज उसने काम किया है इन द इंडस्ट्री, उसके पास एक्सपीरियंस है, बट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग दैट मास्टर्स डिग्री ही इज नॉट एबल टू टेक हायर पोजिशंस, बिकॉज हायर पोजिशंस के लिए मास्टर्स की डिग्री इज अ फ्यू क्राइटेरिया दैट मेनी ऑफ द कंपनीज हैव. सो दैट इज व्हाई what I would suggest is, if you have a choice, definitely go for masters and level up your skills. Also, if you have a choice कि मुझे मास्टर्स अभी करने हैं या फिर कुछ साल बाद करने हैं, तो वी वुड सजेस्ट दैट डेफिनेटली आप अभी कंटिन्यूएशन में ही मास्टर्स कर लीजिए. तो इफ यू आर टेकिंग अ 1 ईयर का गैप, दैट गैप कॉस्ट अ लॉट. सो इफ यू आर कमिंग बैक, आपके कंसेप्ट इतने याद नहीं होते. तो व्हाट यू कैन डू इन दिस, तो इट्स ओके इफ यू आर आपके पास कोई क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है जो आपको जॉब करने पे मजबूर कर रहे हैं, तो इट्स ओके, यू कैन डू दैट जॉब थिंग एंड कैन कम बैक फॉर एमएससी. और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, बट होता है. So it's okay if you have that gap. What you can do is sit for 1 and 2 months at home. जो भी concept आपके BSc के है वो वापस रिवाइज करने. So start from FY, SY, TY, whatever notes you have, you can borrow from your friend and start writing down again. Start revising. और ऐसे रिवाइज थोड़ा आपको टाइम उस पर इन्वेस्ट करना होगा, but trust me it will happen. और ऐसे होता है, हम लोगों को भी after BSc to MSc while jumping, that was a big jump for us, क्योंकि BSc तक सब theory होता है. You are having that घोड़े पे ऐसे पट्टी होती है कि उसको सिर्फ एक ही जगह पे दिखता है, बट इन एमएससी वो सब निकल जाता है, एंड देन यू कैन वाइडन योर एक्सपीरियंस कि अच्छा ये थियरी था तो मुझे यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है. एब्सोल्युटली राइट. और आई नो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जब हमें जॉब लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ मेनी डिफिकल्ट सिचुएशंस. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड इट्स फाइन. एंड जब आप वापस यू हैव टेकन अ डिसीजन टू कम बैक, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर कमिंग बैक बिकॉज यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन. आपको डर लगेगा, यू विल फील दैट देयर इज अ बिग गैप बिटवीन कमिंग बैक, बट डोंट वरी, टेक अ लीप ऑफ फेथ. जैसे दिव्या ने कहा, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, यू विल स्लोली ग्रास्प इट एंड आपको याद आने लगेगा. बिकॉज कहते हैं ना कि एक बार स्विमिंग सीख ली तो आपको बाद में थोड़े मंथ्स के बाद पानी में जाने में डर लग सकता है, बट एक आप कभी स्विमिंग भूलोगे नहीं. इट्स लाइक दैट. स्टैटिस्टिक्स वैसा ही है, आपने एक बार सीख लिया है, आपके कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा. आप में भी ऊपर ऊपर से ब्लरी हो सकते हो, बट वंस यू स्टार्ट गोइंग इनटू इट, आपको चीजें याद आ जाएगी एंड यू विल डू अमेजिंगली वेल इन इट. तो अगर आप प्लान कर रहे हो टू डू अ जॉब आफ्टर BSc, then make sure कि during the 3 years of BSc you make yourself ready by learning these different softwares in the 3 years period, ताकि आप actually industry ready हो जाओ even after BSc starts. So not just for the job but also for MSc, जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर आप BSc में सीख सकते हो उतने सीख लीजिए. जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया, एक लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर यू हैव नाउ, सो गो एंड एक्सपीरियंस. वन थिंग आई वुड आल्सो ऐड, जब भी आप MSc के लिए जा रहे हो, विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो फॉर MSc एंट्रेंस ऑल्सो, बट सिंस यू आर इन अ BSc आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि ज्यादा से ज्यादा सेमिनार अटेंड करने का ट्राई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वर्कशॉप अटेंड करने का ट्राई कीजिए. एब्सोल्युटली राइट. एडिंग ऑन टू दिस, एक्सटेंशन एक्टिविटी करके कॉलेज में एक ग्रुप होता है. सो मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट इन स्टैटिस्टिक्स थ्रू वही किया था. सो एक्चुअली एक्सटेंशन एक्टिविटी का बेनिफिट ये होता है कि आपके फाइनल ईयर के जो मार्क्स होते हैं उसमें एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं आपको इफ यू डू दिस, एंड एट द सेम टाइम आपका एक प्रोजेक्ट भी हो जाता है. एंड द प्रोजेक्ट वाज वेरी सिंपली मैंने लोगों का डेटा कलेक्ट किया था एंड एकदम बेसिक कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे किया था. सो एज दिव्या राइटली सेड कि इट विल बी अ एडेड एडवांटेज, आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा इफ यू डू 1 or 2 सिंपल प्रोजेक्ट्स इन योर BSc. लेट इट बी अ स्मॉल प्रोजेक्ट, कोई डेटा कलेक्ट करना है, कोई आप सिंपल क्वेश्चनर बना रहे हो, जैसे सपना ने बोला कि कैलकुलेशन, अगर आप कैलकुलेटर पे भी उससे कैलकुलेशन कर रहे हो, इट्स ओके.
So thank you so much for watching this video till end. So do share, share this video to your friends, your community. So do comment down your favorite part of this video. Also the application of statistics that you like the most, whether it was that Netflix wala thing, or whether it was a बैंक वाला थिंग, और whether it was some social media जहाँ पे sentiments होता है, या फिर शॉपिंग जाते टाइम आपको चीजें एक साथ दिखती है, क्या आपको सबसे ज्यादा जो भी अच्छा लगे आप जरूर कमेंट कीजिएगा. ऑल्सो हमारा मेन एम इसमें बस एक ही था, create awareness regarding statistics. So please help us create more awareness regarding statistics because बहुत लोगों को इसका नॉलेज ही नहीं है. So spread it as much as possible. So दोस्तों, ये एक जर्नी है, जर्नी टूवर्ड्स academic and career excellence, जिसमें हम हमारे 100% ऑनेस्ट एक्सपीरियंस एंड टिप्स फॉर एक्सेलेंस, जो हमें बहुत टाइम, एफर्ट एंड मनी स्पेंड करके 7 years इन्वेस्ट करके जो भी यूजफुल एंड इम्पैक्टफुल टिप्स पता चले हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे फॉर 100% फ्री. If you like this video, make sure to subscribe to our YouTube channel Smiling Fever. That way you won't miss out on any other actionable and impactful video just like this one. Smiling Fever is 100% honest, raw and deep. We share our real experiences, and by the way it's 100% free. So keep your money and give us your ears so that इस journey में हम excel करें साथ में.